Assalamualaikum everyone. We are back with fifth episode of Sir Syed University of Engineering and Technology Virtual Information Section for Fall Admission 2021. Thank you for joining us. I am Arham Iftikhar Khan, final year student of BBA program in Sir Syed University of Engineering and Technology. As you all know, Sir Syed University have already announced their fall admission 2021 for all undergraduates and postgraduates program in the faculty of Civil engineering, architecture, electrical, computer engineering, computing and applied science in the Faculty of Business Management and Social Science. We have been receiving queries regarding admission program, eligibility criteria, fee structure, degree program, and scholarship program that we are offering. So, to answer to your journal queries, we are here today along with our academic leaders to help your out decision making process. Just know we are accepting online application for admission 2021 in all degree programs. Register yourself on admission portal as early as possible because the last day of admission is extended till 6th of August and tests will be between in the 6th of and 10th August. Now let me introduce to our panelists. We have Dr. Sarmat Shams, Chairman of Biomedical Engineering Department, and University. Engineer Dr. Sarma Shams is Associate Professor of Biomedical Engineering Department at Sir Syed University of Engineering and Technology, where has been since May 2019. From September 2019, he has given charge of the department as chairman. From 2017 to 2019, he was the chairman of Biomedical Engineering Department of Ziauddin University during 2011 to 2013. He worked in CEME, NUST as assistant professor. He received a BS from Sir Syed University in 2007 and MS from the Hanyang University Seoul at South Korea. He received his PhD in biomedical science and engineering from KOE University of Turkey in 2017. He worked as research assistant at CIM and robotics lab in South Korea and manufacturing and automation research center in Turkey. His research span in artificial intelligence, sensor program, instrumentation, and prosthesis currently in the supervision of 4 PhD programs and 3 MS students. And we also have Dr. Uzma Mahmood, Associate Chairperson of Bioinformatics Department in Sir Syed University of Engineering and Technology. She is providing her services since 2014. She has also completed her education from bachelor's to PhD from Karachi University. Her outstanding achievement is to secure gold medal in MS. During her research career, she has published over 11 research articles in international journal and 5 manuscripts in the process of submission. This was an excellent opportunity to communicate with fellow scientists across the globe and to share scientific thought with them. It is also a great honor to our country to discover research in Baden-Württemberg, a paradise for the scientific endeavor. Pakistani top scientists congratulated to her to print media and awarded a memorable title Pakistani Women Scientist. Her research area of interest is computation, drug designing, protein modeling, docking, and still emulation. My first question is for Dr. Sarmat. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, Dr. Sarmat. Walaikum Assalam. Sir, how are you? Alhamdulillah, fine. How are you? Alhamdulillah. Sir, my first question is can you please give me detail about your program that you are offering? Actually, Biomedical Engineering Department currently have 3 undergrad programs, namely number 1, BS in Biomedical Engineering, BS in Biomedical Science, and then BS in Biotechnology. Biomedical Engineering program was started in way back in 1996, and it is a PEC accredited program. And then after last year, we faced a lot of problem during the COVID situation, and we found that there is a need of a biomedical scientist. Biomedical engineers basically develop the equipments and machine and keep it running for the requirement of patients and diagnostic problems. But
who is going to test the samples of the patients and who is going to perform the analysis on that samples. So keeping in view that things, we have introduced biomedical science program as well last year, and then this year we have introduced biotechnology, BS in biotechnology as well. And as you all know that our targeted audience is intermediate student, and I would like to address them in local language Urdu, because most of them is more comfortable in understanding Urdu as compared to the English. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि 1996 में स्टार्ट हुआ. सैयद यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट टू ले द फाउंडेशन ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान. एंड अगर आप पूरी कंट्री में इफ यू ट्रैवल अक्रॉस द पाकिस्तान, यू विल फाइंड बायोमेडिकल इंजीनियर एवरीवेयर इन द कंट्री. आइदर इट्स पेशावर, इस्लामाबाद, आप गिलगित बल्तिस्तान चल जाएं, अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का नाम हो रहा है तो दैट्स मीन अ सर सैयद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इज देयर. ठीक है, either he is a manager or he is working as a service engineer or sales engineer or a marketing engineer. Every domain में biomedical engineering को पूरे पाकिस्तान में सर सैयद यूनिवर्सिटी is leading and serving across the nation. अभी हमें 2-3 सालों पहले जो है एक क्यूरीज आना शुरू हुई कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तो पूरे पाकिस्तान में कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और पंजाब में भी काफ़ी जगह स्टार्ट हो गया, लेकिन बायोमेडिकल साइंस पे किसी ने फोकस नहीं किया. तो हम लोगों ने अपनी जो प्रेसिडेंस है उसको कायम करते हुए कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में सर सैयद यूनिवर्सिटी वाज द लीडिंग वन हु इंट्रोड्यूस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. तो हमने बायोमेडिकल साइंस को इंट्रोड्यूस किया है अंडरग्रेड लेवल पे. व्हाट इज बायोमेडिकल साइंस? बायोमेडिकल साइंस इज बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू द मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस, आइदर इट्स इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, वायरोलॉजी, आप जिस तरफ भी जाना चाहें, एनालिसिस करनी है उसकी, इक्विपमेंट्स को, पेशेंट का डाटा सैंपल आ गया, आपको हु इज़ गोइंग टू प्रोसेस दैट सैंपल? द बायोमेडिकल साइंटिस्ट इज गोइंग टू डू दैट थिंग. तो ये हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है, एंड वी हैव गॉट द रिस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ. और उसकी फिर इसी को कीपिंग इन व्यू दैट बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो लैकिंग इन द सिंध साइड. बायोटेक्नोलॉजी जो पंजाब में तो काफ़ी मैच्योर हो गया बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन सिंध साइड पर अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ. तो हमने लास्ट ईयर उस पर वर्किंग करी और वी फाउंड दैट कि बायोटेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. तो वी स्टार्टेड बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम दिस ईयर. और बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली बायोमेडिकल साइंस थोड़ी सी वास्ट फील्ड है. बायोमेडिकल साइंस इज फोकसिंग टू द ह्यूमन, बेसिकली मेडिकल फील्ड से रिलेट करें क्योंकि इट्स अ बायोमेडिकल. लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी के बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जहाँ पे भी अप्लाई होती है, आइदर इट्स एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर और मेडिकल, तो वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट इज गोइंग टू सर्व देयर. और बायोटेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड जो पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो आप ये भी देख सकते हैं कि पहले जो है वो, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ अक्सर, कि जब आज से 10-15 साल पहले चले जाए, आम के जो वो चंद किस्में होती थी, लेकिन लेटर ऑन रिसर्च होती है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, मॉडुलेट किया गया, तो अब आपको आम की 10,000 किस्में नजर आती है मार्केट में. तो ये कौन सर्विस दे रहा है? ये सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो ये बायो साइंटिस्ट हैं, जो ये इस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इन्हेंस कर रहे हैं न्यूट्रिशन को, फूड को, एग्रीकल्चर को. प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू एक ही एकड़ में अगर आप लेट से 1 टन आपकी प्रोडक्शन थी तो आपको इंक्रीज करके 2 टन पे ले गए. द होल रिसर्च इज कैरिड आउट द बायोटेक्नोलॉजिस्ट. तो ये हमने स्टार्ट किया. तो हमारे पास 3 प्रोग्राम है अंडर ग्रेड लेवल पे. ये हमारे पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम से, वन इज MS इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सेकंड वन इज PhD इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. एंड सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू स्टार्ट MS एंड PhD इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल साइंस एज वेल. फर्स्ट विल सी के हमारा जो ये प्रोग्राम मैच्योर होता है, कुछ 4-5 साल में कुछ ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, देन वी विल वर्क ऑन पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोमेडिकल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एज वेल. ओके सर. सर आप लोग कोई स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर करते हैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह को? हमारे पास नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं. मैं उसकी कुछ कैटेगरीज आपको बता देता हूँ.
सबसे पहले हमारे पास स्कॉलरशिप है जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो प्योरली मेरिट पे होती है, जिसमें अगर आपकी 3.5 CGPA हो और 90% अटेंडेंस हो, यू विल गेट इट ऑटोमेटिकली, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ ट्यूशन फीस इज गोइंग टू वेव फ्रॉम योर बिल, ठीक है, आपकी फीस में से वेव हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्टूडेंट ने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। 3.5 GPA लेनी आउट ऑफ 4, ऑलमोस्ट 85% बनती है। अगर हम इसको कहें, अगर कोई 85% मेंटेन कर रहा है और 90% अटेंडेंस है उसकी सेमेस्टर में, तो ही और शी इज गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। सेकंड स्कॉलरशिप आती है हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप है, जिसमें अगर स्टूडेंट is lacking in attendance और 3.5 CGPA नहीं है, लेकिन he or she is carrying 3 CGPA and 85% attendance है, तो she or she is available for financial assistance। उसकी financials को देखा जाएगा, उसके बिल्स देखे जाएंगे, उसके फादर की इनकम देखी जाएगी, सिबलिंग की इनकम्स देखी जाएंगी। वो इसका जो प्रोसीजर है स्कॉलरशिप सेक्शन आपको डिटेल में ज़्यादा अच्छा बता देगा। तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप होती है। थर्ड काइंड ऑफ स्कॉलरशिप जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो सिबलिंग स्कॉलरशिप है। इफ 2 और मोर सिबलिंग्स आर स्टडिंग इन द सेम यूनिवर्सिटी, और तो उसको जो है स्कॉलरशिप सेक्शन में वो अप्लाई करता है, और उसमें भी हम मेरिट को चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा फेल हो जा रहा है उसको हम स्कॉलरशिप दे दें। स्कॉलरशिप आर फॉर द स्कॉलर्स, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें, स्कॉलर्स के लिए होती है हु इज परफॉर्मिंग गुड। तो सिबलिंग स्कॉलरशिप्स हैं जो अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो सिबलिंग्स अगर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं एट अ टाइम, तो उनको भी हम स्कॉलरशिप्स देते हैं। सर आप लोग स्टूडेंट के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हैं, आप लोग मंथली प्रोजेक्ट्स होते हैं पर सेमेस्टर्स आप लोग के, आप लोग ईयरली प्रोजेक्ट के जॉब फेयर्स वगैरह के थ्रू करते हैं आप लोग? हम लोग प्रोजेक्ट्स पे हमारा हैंड्स ऑन बहुत फोकस है, हमारा बायोमेडिकल इंजीनियर खास तौर से, और बायोमेडिकल साइंस में ही हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। हमारे 2 काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक होता है सेमेस्टर प्रोजेक्ट। सेमेस्टर प्रोजेक्ट इज गिवन टू द स्टूडेंट हु इज इन करंटली enrolled in the semester and having a lab part associated with the course। लैब पार्ट हम लोगों ने इसमें ज़रूरी रखा हुआ है कि अगर लैब पार्ट है दैट्स मीन के ही और शी इज़ गेटिंग हैंड्स ऑन दैट कोर्स एज वेल। सो हम लोग उसको स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स देने, कोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं जो सेमेस्टर में उसे सबमिट कराना होता है। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट्स होता है जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम से FYDP फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट होता है, जो फाइनल ईयर में कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए। और इसके साथ हम लोगों ने अभी जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है वो कम्युनिटी सर्विस को हम इंट्रोड्यूस करा दें, क्योंकि हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं या बायोमेडिकल साइंटिस्ट हैं, इन लोगों का मेन मकसद जो है, हमें मेन टारगेट इनको इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं बनाना है। इनको मेन हमारा जो टारगेट है वो एक अच्छा इंसान कब बनेगा, जब वो खिदमत खल्क करेगा, ठीक है। खिदमत खल्क का जज्बा अगर एक स्टूडेंट के अंदर मौजूद होगा, इफ़ ही और शी इज़ एन इंजीनियर और साइंटिस्ट, ही और शी इज़ गोइंग टू सर्व हिज प्रोफेशन more efficiently as compared to the one who is not having at that exposure, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस जो अब हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उसके कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम किया जाए। कैरेक्टर बिल्डिंग पे उसकी इथिक्स, अखलाकियात कैसी हों, हाउ ही और शी इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विद द सोसाइटी एंड विद द इंडिविजुअल एट लेवल पे, ठीक है। हाउ इज़ गोइंग टू डील विद द पेशेंट्स एंड हाउ इज़ गोइंग टू डील विद द, अगर जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आया हुआ है, अब उसको जो है वेंटिलेटर की डिवाइस लगी हुई है, अब वहाँ पे इथिक्स बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि अब वहाँ पे अगर कोई खड़े होकर सेल्फियाँ बनाना शुरू हो जाए, इट्स नॉट इथिकल ना, कि एक पेशेंट है, उसकी कंडीशन क्या है, वेंटिलेटर पे है, वेंट पे, जैसे कोविड की सिचुएशन में वहाँ पे उसके जो अटेंडेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे जो है वो इथिक्स है नहीं, इसके अंदर सेल्फियाँ बनाना शुरू। तो इथिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। और उसमें वो फिर अब जब पेशेंट लगा हुआ होता है तो वो जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो डील करना, इट्स वेरी क्रिटिकल और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोफेशन ऑफ मेडिकल। ये तो बहुत क्रिटिकल है, इसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ओके सर आप अपना क्राइटेरिया फॉर एडमिशन डिस्कस कर देंगे कि कौन एलिजिबिलिटी और परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें? अच्छा, क्राइटेरिया मैं बता दूं, हमारे पास जो अंडरग्रेड प्रोग्राम है BS बायोमेडिकल साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए हमारे पास प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, A लेवल के स्टूडेंट्स, DI स्टूडेंट्स और इक्विवेलेंट, दे ऑल आर एलिजिबल, ठीक है।
इसमें बायोमेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी में द परसेंटेज रिक्वायरमेंट इज 50%. 50% अगर किसी कैंडिडेट की है इंटरमीडिएट में, he and or she is eligible to appear in the examination, और एग्जामिनेशन पास करेगा, जो भी उसका फार्मूला रेशो है वो यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करके मेरिट लिस्ट लगाएगी तो वो एडमिशन ले सकता है. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज पीईसी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्रेडिटेड प्रोग्राम. इसकी एलिजिबिलिटी हमारे पास सेम है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ए लेवल्स और इक्विवेलेंट इज एलिजिबल. डीए की हमारे पास 2% सीट्स होती हैं एज पर द क्राइटेरिया सेट बाय पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और इसमें जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो 60% है. 60% मिनिमम परसेंटेज पे जो है कैंडिडेट कैन गेट एडमिशन इन द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम. एमएस और पीएचडी में 3 और 3.5 रिस्पेक्टिवली CGPA चाहिए, और एमएस पीएचडी में भी हमारे पास एडमिशन ओपन है अभी. ठीक है ओके सर, एंड में कोई आप शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को? शॉर्ट मैसेज में यही देना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट वे बैक इन 2002 एंड आई डिड इंटरमीडिएट एंड आई सर्च अबाउट विच फील्ड आई हैव टू चूज इन फॉर माय कैरियर. तो उस वक्त मैंने बहुत सर्वे किया. मेरे मामू कनाडा में भी थे, आई हैव रिलेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूके एज वेल. तो उनसे ही मैंने कंसल्ट किया. आई वाज वरीड अबाउट बिकॉज आई वाज द फर्स्ट सिबलिंग हु इज गोइंग टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम. तो उसमें हम लोगों ने मैंने बहुत कंसल्ट किया उन लोगों से भी कि भाई हमें किस फील्ड में जाना चाहिए. तो उन लोगों के जो अगर इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक जो उस वक्त की 2002 की बात बता रहा हूँ, तो उसमें जो सर्वेज मैंने रिसर्च किया उस वक्त उन्होंने का प्रेडिक्ट किया था, अमेरिकन ने, यूके जो वो इंटरनेशनली प्रेडिक्टेड था कि 2021 सेंचुरी इज़ द बायो सेंचुरी. बायो सेंचुरी से क्या मुराद है कि अगर आप देखें बायो चिप इज़ इन द मार्केट, बायो मेडिकल एट इट्स बूम, बायो टेक्नोलॉजी इज़ थ्राइविंग. तो ये जो है ना ये सब एक्सेल कर रहे हैं. ठीक है. देन यू हैव अ बायोमेडिकल साइंस, then you have biogases is there, biofuel is there, biocells is there, जो भी आप नाम ले bio is there. तो bio is the field of the future. ये 21st century is completely for dedicated to, you can say, biomedical field. तो इसमें career opportunities अनलिमिटेड है. हमने अपने आप को लिमिट किया है. वी विल डू द सेल्स जॉब और सर्विस जॉब, और वी विल स्टक विद द लैबोरेटरी एंड दैट्स इट. No, tissue engineering is there, genetic engineering there, DNA is there, immunology is there, virology is there, pathology is there, even food science is under the category of biomedical science. Even agriculture is lying in the umbrella of biotechnology, and biomedical engineering is providing service to rehabilitation centers, healthcare centers, hospitals, laboratories, you can name them, the physiotherapy devices, आपकी जो hearing aid devices हैं, इम्प्लांट्स हैं, ब्रेन सर्जरी है, रोबोटिक्स में जा रहे हैं, प्रोस्थेटिक्स में जा रहे हैं. इवन यू कैन नेम एनी फील्ड एंड यू कैन फाइंड अ लिंक विद बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. सो दिस सेंचुरी इज कंप्लीटली बायोमेडिकल सेंचुरी. और यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ी है तो जो इक्विपमेंट बन रहा है वो, अगर मेडिकल इक्विपमेंट बंद है तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बगैर वो इक्विपमेंट बेकार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फिजियोलॉजी एनाटॉमी ऑफ ए पर्सन. ये अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और उसने रोबोटिक आर्म फॉर द सर्जरी बनाना है तो मैकेनिकल कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. अगर आपने कोई एनालिसिस करनी है, यू आर द डेटा साइंटिस्ट एंड यू डोंट नो द पैथोलॉजी ऑफ द सेल्स, यू कैन नॉट do the analysis of that pathologic cell. Even you are the data scientist, you need a biomedical science scientist. You have agriculture degree but you don't have the biology of that seed, then you cannot replace the DNA or change or alter the sequence, etc. So this is the century of biomedical or biotechnology, biomedical engineering. So तो यही मेरा मैसेज है कि चूज वाइसली और इसमें अपनी एनालिसिस ज़रूर करें. मेरा ओपिनियन भी आ गया आप लोगों के सामने. सर इंटरनेशनल मार्केट ओपन है, यू कैन डू द गूगल एंड यू कैन फाइंड एनीथिंग ऑन द इंटरनेट. हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ सर्वेज आर अवेलेबल. विच मार्केट फील्ड हैव टू चूज, विच प्रोफेशन हैज द हाईएस्ट सैलरी अक्रॉस द वर्ल्ड.
Even you go in USA, Canada, Australia, New Zealand, South Korea, or any other places in the world, you can find that the top highly paid profession is the profession linked to the biomedical science, biotechnology, and biomedical engineering. I think I'm taking too much of your time, and I have explained everything. If you have any other question, please feel free to ask me. नो सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर कॉपरेशन। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से गाइड हो गए होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच सर। ओके, now we have Dr. Uzma, Associate Chairperson of Bioinformatics Department in Sir Syed University of Engineering and Technology. Assalamu alaikum ma'am, I hope you are doing great. Walaikum salam. Alhamdulillah. What about you? Alhamdulillah ma'am. Can you please give me a brief question about your department and program that you are offering? Okay. First of all, I really appreciate the management and admission committee to offering Sir Syed University of Technology and Engineering to offer this kind of opportunity for intermediate students. And जैसा कि डॉक्टर समर ने एक्सप्लेन किया कि हमारी ऑडियंस इंटरमीडिएट है, तो उनको बहुत इजी लैंग्वेज में डिलीवर करना है कि वो इजीली चूज कर सकें अपनी फ्यूचर फील्ड कि किस फील्ड में उन्हें ज्वाइन करना है. और ऑल्सो डॉक्टर समर ऑल्सो एक्सप्लेन दैट दिस इज एरा ऑफ द बायो एरा. सो और सर सैयद जो एरा ऑनगोइंग एरा है उसका अकॉर्डिंगली डिमांड पूरी कर रहा है मार्केट की भी. तो सर सैयद ने पायनियर्स में से है, उन्होंने एक नई फील्ड लॉन्च की है विच इज़ नोन एज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. एंड ये टोटली न्यू फील्ड है और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली इंफॉर्मेशन नहीं होगी. तो बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोई न्यू फील्ड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है बायो एंड इन्फॉर्मेटिक्स का. ठीक है, आपको बताया कि 21st सेंचुरी में तमाम चीज़ें आईटी पे शिफ्ट ओवर हो रही हैं, तो बायो का तमाम डेटा भी आईटी की तरफ शिफ्ट ओवर हो रहा है. अब जैसे कि डॉक्टर समर ने भी एक्सप्लेन किया कि हमारी तमाम जो एजुकेशन है, एकेडमिक्स है, वो ह्यूमन को ईज करने के लिए है. तो बायोलॉजी जो है जिसमें बिग डेटा है, जिसमें आप क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तमाम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो डेटा जनरेट होता है उसको आप डील कर सकते हैं. तो लेमैन मेथड्स से ये इजी नहीं है, मैनुअली इजी नहीं है, इसीलिए इसको हमने ह्यूज डेटा को डील किया है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटेशनल पावर. कंप्यूटेशनल पावर को मिंगल किया गया है बायोलॉजिकल डेटा के एनालिसिस एंड सॉर्टिंग और इंटरप्रिटेशंस के लिए. इसकी एक एग्जांपल हमारे सामने कोविड है. कोविड चाइना से स्टार्ट हुआ, फिर वो फॉरेन कंट्रीज की तरफ मूव ऑन हुआ, फिर इंडिया में, और लेमैन के को भी इसका आइडिया है कि डेल्टा वेरिएंट आ रहा है. ये तो बायो इन्फॉर्मेटिशियन बिग डेटा में डील कर रहा है. इतनी क्विकली जो एनालिसिस हो रही है वो बायो इन्फॉर्मेटिशियन के थ्रू ही हो रही है, क्योंकि इनसे आप देखें किसी भी फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड की नीड ही इसीलिए है, और ये इतना अपग्रोइंग फील्ड ही इसलिए है कि इसमें आपका टाइम कंजप्शन कम है, लेस टाइम में आप मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटेशनल पावर. तो जो आपका कोविड है, कोविड की एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, तमाम जितने भी हमारे ऑडियंस हैं इंटरमीडिएट के, वो इस फेज से, इस पैंडेमिक में हम गुजर रहे हैं, तो वो बहुत वेल नोन है इस टर्म से. तो इसमें जितना डेटा जनरेट हो रहा है, तो एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन क्विकली उनकी एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी सीक्वेंस की एनालिसिस. रिसर्च बेस्ड ये फील्ड है, और रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो एक पेशेंट में जो सीक्वेंस में चेंजेस आ रही हैं, जब वो किसी और कंट्री, किसी और उसमें एरिया में वो डिजीज डिस्कवर हो रही है, तो उसमें क्या चेंज है. तो बायोइन्फॉर्मेटिशियन इजीली क्विकली उसको परसू कर रहा है. और बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है. इसमें आपके पास सारे फ्लेवर्स अवेलेबल होंगे. आप इसमें बायोस्टैटिस्टिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व है, और मेडिकल इन्वॉल्व है, बायोलॉजी इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री. तो तमाम चीज़ों का फ्लेवर भी इस एक इमर्जिंग फील्ड के अंदर मौजूद है. तो स्टूडेंट की अपने इंटरेस्ट है कि इस पूरी फील्ड को कॉप अप करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद किस साइट को वो कर सकता है, उसकी डिमांड इन्हांस हो जाती है. और बायोइन्फॉर्मेटिक्स इस लिहाज से भी बहुत पॉपुलर है कि इसने उस ब्रिज का रोल अदा किया है कि दो फील्ड जो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल है, उन दोनों को मर्ज कर दिया एक साथ. तो पहले जो हमारा पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रेंड था कि मेडिकल साइड वाले कंप्यूटिंग और इसमें नहीं आ सकते थे, या कंप्यूटिंग वाले मैथमेटिक्स और इस साइड पे नहीं जा सकते, बायोलॉजी मैथमेटिक्स की तब इंजीनियरिंग के कोई कोर्सेज नहीं ले सकते थे. तो इन सबको ब्रिज मर्ज कर दिया गया है. तो बायोइन्फॉर्मेटिशियन की अपॉर्चुनिटीज भी हाई हो गई हैं.
वो तमाम सेक्टर्स से बड़ा अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइंस है और ये बहुत ग्रो कर रही है। अगर आप गूगल आउट करें, वर्ल्ड वाइड करें, तो ये कोई न्यू फील्ड नहीं है। बायोलॉजी को मर्ज कर दिया गया है कंप्यूटेशन के साथ, क्योंकि जिस तरह से डेटा ह्यूज हो रहा है, आप डिजीज की बात करें, ड्रग डिजाइनिंग की बात करें, आप प्रोटीन डेटा की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि डायबिटिक्स की बात हो रही है, तो वो किस तरह से इनहेरिटेडली जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। जैसे सर ने अभी मैंगो की एग्जाम्पल दी, तो मेरे स्टूडेंट ने मैंगो जीनोम प्रोजेक्ट पे वर्कआउट किया था कि किस तरह से उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से उसको फर्टिलाइजेशन के लिए बेटर एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उसकी जेनेटिकली हम किस तरह से चेंजेस करते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं आउट ऑफ द सीजन भी। तो ये सारी चीजें हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फ्लेवर में आपको मिल सकती हैं। बिल्कुल लेमैन के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द मिंगल है बायोलॉजिकल डेटा के लिए। जो बिग डेटा जनरेट हो रहा है उसकी एनालिसिस, सॉर्टिंग, इंटरप्रिटेशन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर पावर हम इजीली कर सकते हैं, बिग डेटा को डील कर सकते हैं। जो आजकल मार्केट में डिमांड है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई, उस तमाम फ्लेवर्स आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मिलेंगे और इसके थ्रू आप उसको डील कर सकते हैं और ह्यूमन के जो प्रॉब्लम्स हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करके उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके मैम, मैम अपनी फैकल्टीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और क्या है? एक्चुअली जैसे मैंने बताया, ये इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइंस है, इसमें तमाम डिसिप्लिन को मर्ज करके फील्ड ग्रो कर रही है। तो हमारी फैकल्टी में भी फ्लेवर है, हमारी फैकल्टी में भी आपको एक फ्लेवर मिलेगा फ्रॉम मास्टर। एक तो हमारी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है फ्रॉम मास्टर लेवल टू दी पीएचडी लेवल, पोस्ट डॉक लेवल। और इसमें फ्लेवर इस तरह से कि बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, तमाम टीचर की एक्सपर्टीज को यूज करते हुए हम इस फील्ड को ग्रो कर रहे हैं। और सर सैयद ने ये इनिशिएटिव लिया है और सिंध चैप्टर में, जैसे डॉक्टर सरमद ने भी बताया कि पंजाब चैप्टर्स में तमाम चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। चैप्टर्स पे अभी वर्किंग कर रहा है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स लॉन्च करने के लिए सर सैयद पायनियर्स में से है जो उन्होंने लॉन्च किया है। और मार्केट डिमांड को देखते हुए इसकी, क्योंकि अब ग्रोइंग फील्ड है, मार्केट कैचिंग फील्ड है। और जो इस पैंडेमिक में तमाम अगर आप देखें कि जितने भी सोल्यूशन और वो प्रोवाइड हो रहे हैं ड्रग डिजाइनिंग के हवाले से, जितनी रिसर्च हो रही है उसमें बायोइन्फॉर्मेटिशियन अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हमारी जो फैकल्टी है वो डायनेमिक है, तमाम डिसिप्लिन से मर्ज करके हमने अपनी फैकल्टी को एक फैकल्टी सेटअप क्रिएट किया है फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएस डिग्री बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए। ठीक है मैम। मैम आप लोगों का प्लान कोई है, फ्यूचर प्लान ऑफ द प्रोग्राम जो आप लोग बताना चाहें? बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जैसे आपको बताया कि हमने बीएस 4 ईयर बायोइन्फॉर्मेटिक्स लॉन्च किया था, तो अब इनकी जो डिमांड देखते हुए कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी मूव ऑन हो रहे हैं, स्टूडेंट मास्टर्स की तरफ भी मूव हो रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट अब्रॉड में भी एडमिशन सिक्योर किया है और लेकिन मास्टर लेवल में क्योंकि सिंध चैप्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो स्विच ओवर कर रहे थे डेटा साइंस की तरफ और डिफरेंट फील्ड की तरफ। तो उसको देखते हुए, डिमांड देखते हुए हमने प्लान किया है कि रिसेंटली हम एमएस डिग्री लॉन्च करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। या हमारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो रिसर्च की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, वो और मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो अपने ही प्लेटफॉर्म से, सर सैयद के प्लेटफॉर्म से। ठीक है मैम। मैम आप लोगों के जो कोर्सेस हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड डिजाइन हुए हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके आप लोग अकॉर्डिंग अपने कोर्सेस वगैरह करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया अपने ऑडियंस को भी, इंटरमीडिएट के, कि हम ऑडियंस के ध्यान में भी क्वेश्चन आएगा कि आप कंप्यूटिंग की भी बात कर रहे हैं, एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, बायोइन्फॉर्मेटिशियन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो किस तरह से ये डिजाइन किया गया होगा कोर्स। तो उस जो हमारी कोर्स की डिमांड है वो मार्केट लेवल को भी मीट करती है और स्टूडेंट के लेवल को भी, कि अगर हम वेलकम कर रहे हैं प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग बोथ साइड्स को, तो हमने फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उसको इस तरह से तमाम कोर्सेज को स्प्लिट किया गया है कि अगर प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हमारा स्टूडेंट हम इनटेक ले रहे हैं और उसका वीक पॉइंट है या बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं कंप्यूटर साइंस की, मैथ्स की, तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी स्किल्स को ग्रो करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उससे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है उसको बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उससे बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है, ताकि हमारा स्टूडेंट एक लेवल पे आके आगे के फर्दर कोर्सेज
के क्राइटेरिया को मीट कर सके। और मार्केट डिमांड से इस तरह से कर रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग, पाइथन, आपको पता है प्रोग्रामिंग के उसमें पाइथन बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है बायो सेक्टर में, तो उस लैंग्वेज को लेते हुए हम तमाम कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। प्लस AI बहुत ज़्यादा एडवांस है, और क्योंकि कंप्यूटर साइंस का इन्वॉल्वमेंट है और हमारे बच्चा के पास अपॉर्चुनिटी ड्यूअल हो जाती है कि वो प्रोग्रामर बनना चाह रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहा है, रिसर्चर बनना चाह रहा है, या आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करना चाह रहे हैं, ड्रग डिजाइनिंग कंपटीशन ड्रग डिजाइनिंग पे वर्कआउट करना चाह रहा है, तो उसके लिए हमने बहुत फ्लेवर रखा हुआ और तमाम फ्लेवर को अप टू बैचलर लेवल तक हमने अपने कोर्स में डिजाइन किया हुआ है। तो वो AI भी पढ़ रहा है, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है, बायोस्टैटिस्टिक्स भी का भी उसके पास फ्लेवर है, बायोकेमिस्ट्री के भी कोर्सेज हैं, ताकि वो जेनेटिक्स का भी कोर्स है, जीनोम, प्रोटियोम, स्पेशल बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्सेज जिसमें वो ड्रग डिजाइनिंग को देख सकता है, क्योंकि कंप्यूटेशनल बेसिकली ये इन सिलिको बेस्ड टेक्निक है, इन सिलिकॉन चिप बेस्ड टेक्निक है कि आप कंप्यूटर पे ही तमाम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसपे वो कर सकता है। तो वो अगर कोई डिजीज को स्टडी करना चाह रहा है कि किस तरह से, अगर एक लेमैन के लिए मैं अगर बताऊं, कोई ड्रग इंटेक कर रहे हैं या डायबिटिक की अगर हम बात करें, कैंसर्स की बात करें, तो वो उस ड्रग को चेक कर सकता है कि कौन से बॉडी के जो हाईलाइटेड एरियाज है, प्रोटीन है, उसको इंडल्ज होता है, उसका एक्टिव साइड में जाके मर्ज होती है, और किस तरह के साइड इफेक्ट डेवलप होते हैं, उनको किस तरह से ओवरकम कर सके। तो हमारे जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन हैं वो इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप भी करते हैं कि वो इजीली विजुअलाइजेशन एक्सपेक्ट से भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो हमारी जो कोर्सेज की डिमांड है, जो कोर्सेज की डिजाइनिंग है, वो मार्केट लेवल के अकॉर्डिंगली ही है। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि न्यू लॉन्च हुआ है बायोइन्फॉर्मेटिक्स वगैरह, तो मैम इससे कोई फ्यूचर स्कोप आपका कोई मार्केट के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में हम स्टूडेंट्स को बताना चाहें गाइडेंस के लिए? जी, देखिए, एक न्यू फील्ड है। जब IT का एक एरा आया था तो सबके लिए बड़ी चीज थी कि कंप्यूटर पे बैठ के क्या होगा, इसकी जॉब मार्केट क्या होगी। आप लेट 90s उसमें जाएं तो आपको भी थोड़ा सा उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगी गूगल वगैरह पे कि बिल्कुल भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम माइंड सेट पे इतना ज्यादा फोकस्ड है कि हम न्यूली चीज को अडॉप्ट ही नहीं करते कि ये क्या होगा। और जैसे डॉक्टर समर ने बताया कि पहले एजुकेशन आप गुड ह्यूमन के लिए परसू कीजिए। आप किसी भी चीज में एडमिशन लें, उसके बाद आपकी अपनी ह्यूमन स्किल्स पहले डेवलप हो, उसके बाद आप देखेंगे उससे आप ह्यूमन के लिए, अपनी ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अगर ओपन माइंडेड से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, स्किल्स को देखते हुए अगर आप कोई चूज करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि न्यू जो टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोग्राम जो लॉन्च हो रहे हैं, वो एक तो फॉरेन कंट्रीज की डिमांड के आपको हम उस लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि कम्पीट करें, हम डेवलपिंग से डेवलप कंट्रीज की तरफ मूव हो, तो उनको अडॉप्ट करें, स्टडी करें, जैसे चूज खुद आप करें। आपको हमारे इंफॉर्मेशन भी मिल गई, नेट से मिल जाएगी, लेकिन आप ऐसा ना करें कि जो ऑन गोइंग है आपको लगा ये न्यू फील्ड है, इसमें कोई स्कोप नहीं, इस वजह से आप सिलेक्शन ना ड्रॉप करें। आप इस पर स्टडी करें और फिर जो इसका फ्यूचर स्कोप है ना, देखिए, जब आप इसका पूरा ग्रेजुएट कर लेंगे तो आपके पास, अगर आप इसको करेक्टली बिल्कुल परसू किया है प्रोफेशनली, तो इसके चांसेस डेवलप हो जाते हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हाउस में जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का सेटअप बहुत ज्यादा अवेलेबल है रिसर्च सेंटर्स में, आप वहाँ अपने आप को इंडल्ज करवा सकते हैं। इसमें अगर आप मेरी एग्जांपल लें, मैंने जब इस फील्ड को ज्वाइन किया तो मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल नहीं थी, सीनियरिटीज नहीं थी कि क्यों इस फील्ड को किया जाए, लेकिन एक जस्तुजू थी कि एक नई फील्ड में हम अपना रोल प्ले करें। मुझे कुछ न्यू करना था, और डेफिनेटली जब मैंने इसे ज्वाइन किया तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो मैंने ब्रेन डिसऑर्डर पे किया, अल्जाइमर डिजीज पे। तो मैंने जो ऑलरेडी ड्रग डिजाइनिंग थी उन पर वर्कआउट किया कि क्यों एक डिजीज के लिए जो ड्रग्स दी जा रही हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और उसकी एफिशिएंसी इतनी हाई क्यों नहीं है। तो क्योंकि आपकी ये फील्ड है, ये आपको न्यू चैलेंजेस देगी, आपको न्यू डायमेंशन देगी, न्यू होराइजन देगी, आपकी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी हर डायमेंशन में। जब आप, क्योंकि रिसर्च बेस्ड फील्ड है, तो आप इसको न्यू उससे करें, ड्रग डेवलपमेंट, आप
जो आप नॉर्मली चीज सेकेंड्स और मिली सेकेंड में देखते हैं, नैनो सेकेंड तक उसकी चेंजेस दे सकते हैं कि एक ड्रग प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके किस तरह से नैनो सेकेंड में अपना बिहेवियर चेंज कर सकती है। तो जो कंप्यूटेशन की पावर को यूटिलाइज करते हुए आप बायोलॉजिकल डेटा को डील करते हुए किसी ड्रग की डिजाइनिंग में अपना रोल प्ले करेंगे, तो ये एक टोटली न्यू डायमेंशन थी मेरे लिए कि मैंने इसे परसू किया एज अ प्रोफेशन इस फील्ड को। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, हर उसमें मैं वर्कआउट कर रही हूँ। और रही बात जॉब स्कोप के हवाले से, तो मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई थी और मेरे पास जॉब थी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को करते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का वर्ड भी किसी कंपनीज के आपके उसमें नहीं मालूम था, कोई सेंटर्स नहीं थे, किसी कोई जॉब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नाम से नहीं आती थी। लेकिन अभी आप अगर गूगल आउट करें, वर्ल्ड वाइड करें या पाकिस्तान चैप्टर में भी ये करें, तो आपको इसकी जॉब्स मिलेंगी, आपको इसका एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक फील्ड के दे हैव रिक्वायर्ड द बायोइन्फॉर्मेटिशियन फॉर देयर जॉब टास्क। तो इसकी बहुत ज्यादा स्कोप्स है और हर फील्ड में, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मिंगल है। तो आप जिस फील्ड में अपने आप को एक्सेल करेंगे, जिसकी प्रोग्रामिंग एक्सेल होगी तो प्रोग्रामिंग साइड पे जाएगा। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट रखा होगा, फॉर एग्जांपल विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर वर्कआउट करेंगे हम, बहुत प्रोटीन एनालिसिस के सॉफ्टवेयर इसमें डील करेंगे, डेटाबेसिस को डील करेंगे। तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा वो उस फील्ड में जा सकते हैं। तमाम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको फील्ड को कॉप अप करते हैं और अपनी जो स्किल्स है उसको किस तरह से इन्हांस करते हैं बाय द एंड ऑफ योर ग्रेजुएटिंग डिग्री। ओके मैडम, मैम आप कोई एडमिशन क्राइटेरिया बताना चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट का कि एलिजिबिलिटी वगैरह जो होती है स्टूडेंट्स के लिए? ये टोटली वाले बच्चे सेम है जैसे मैंने बताया कि इंटरमीडिएट जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से भी है, प्री इंजीनियरिंग भी है, दोनों को 50% जो उनका अटेंडेंस 50% जो उनकी मार्क्स क्राइटेरिया उस पर वो ले सकते हैं। और जो हमारा अभी टेस्ट बेस होगा उसकी परसेंटेज की मार्क्स पर उनको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी है, जैसे डॉक्टर समद ने भी पूरा एक्सप्लेन किया। स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है और प्लस मैं आपको ये बताऊं कि जब न्यूली फील्ड है तो हमने क्राइटेरिया कुछ सीट्स एलोकेट की हुई है। तो जो बच्चे अगर बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें अपने टेस्ट में परफॉर्म करते हैं और वो मीट करते हैं हायर 50 क्राइटेरिया को, तो उनको स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके इंटरेस्ट के लिए। और ये प्लेटफॉर्म हमने दिया गया है इवन कि वो हमसे डायरेक्टली भी यूनिवर्सिटी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है। और हमारे पास पूरे एडमिशन सेल्स मौजूद हैं, उनसे जाके अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो आपके 50% मार्क्स पे आप इसमें सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, OA लेवल से, आपको यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ओके मैम, मैम को आप मैसेज देना चाहेंगी एंड में? जी डेफिनेटली मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी फील्ड को जब चूज करें तो जैसे डॉक्टर समद का मैं बताऊंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बड़े डेप्थली डिफाइन की हैं कि फील्ड चूज करते हुए आप ये देखिए कि आगे क्या है। जैसे अगर डॉक्टर समद है, मैंने फील्ड चूज की थी, हमें आगे का नहीं मालूम था लेकिन इंटरेस्ट पे था कि क्या करना चाह रहे हैं। तो जो आप करना चाह रहे हैं उसमें क्लियर हो कि आपका क्या इंटरेस्ट है, स्कोप आपकी राहें खुद ही खुलती चली जाएंगी। जिन लोगों ने इनिशियली आईटी में वर्कआउट किया था, क्या उन्हें मालूम था कि अब ईच एंड एवरी सेक्टर में आईटी इन्वॉल्व है? लेकिन नहीं उन्होंने लिया। जब मैंने या मेरे सुपरवाइजर्स ने जिन्होंने जिनके अंडर मैंने पीएचडी किया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के इदारे ने जब ये मेडिसिनल केमिस्ट्री बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डिपार्टमेंट ओपन किया था, क्या उन्हें मालूम था कि वो ग्रो करेगा? जब उन्होंने फर्स्ट इसमें पोस्ट डॉक करने का सोचा या उसमें पीएचडी किया, तो आपको आगे का नहीं मालूम होता है। आपको जो इंटरेस्ट है आप उसमें करें। आप देखें इस समय बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में आप ड्रग डिजाइनिंग के उस पर जा सकते हैं, सिमुलेशन पे नैनो सेकेंड्स में क्या चेंजेस हो रही, नैनो सेकेंड जो कि आपकी नेकेड आई से तो बिल्कुल भी तस्वर नहीं कि एक ब्लिंक आप आई भी ब्लिंक करते हैं तो उसमें कुछ सेकेंड्स रिक्वायर्ड है। तो नैनो सेकेंड्स की भी जो सिमुलेशन आप उसमें कर सकते हैं, डायनेमिक लेवल पे चेक कर सकते हैं। आप किसी ड्रग की एसोसिएशन चेक कर सकते हैं, किसी प्रोटीन की एक्टिव साइड में कौन से रेजिड्यूज के साथ इन्वॉल्व है। और इसमें इतना मार्जिन है लर्न करने का, स्किल्स करने का, ग्रो करने का, मार्केट डिमांड्स को पूरा करने का, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करने का। तो मैं वेलकम करूंगी इस फील्ड में भी और आप लोगों से कहूंगी कि बहुत वाइसली कोई भी चीज सिलेक्ट कीजिए और उस पर स्टक रहिए। ये नहीं कि और डेफिनेटली फेलियर्स ना देखिए
क्योंकि हम कहते हैं उसने उसका तो ये रेशो रहा, उसको इस फील्ड में नहीं मिली, आपको नहीं पता उस जिस शख्स को आप आइडियलाइज करें उसका क्या सिनेरियो है। हमेशा उनको देखिए जो इसमें पायनियर्स हैं, कि उन्होंने इस किसी भी फील्ड में, अगर आप न्यूटन की बात कर लें किसी, तो वो उनके अपने आइडियाज थे, उन्होंने किसी दूसरे को देख के नहीं कोई आइडिया परसू किया कि उस शख्स ने ऐसा किया तो मैं भी ये इस तरह का वो करूं। अपनी न्यूली आइडिया, न्यूली थ्योरी उस पर वर्कआउट किया, थिंकिंग को, अपनी हाइपोथेसिस को, सबको मर्ज किया कि एक नई चीज को किस तरह से परसू किया जा सकता है। तो आप डिसाइड खुद करें, लेकिन अपनी होमवर्क जो है, अपना जो किसी भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और फिर खुद डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं। और बेसिकली एजुकेशन हासिल करें गुड ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। जॉब इंशाल्लाह आपके जो भी आपके नसीब होगी आपको मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप इसकी दौड़ में ना जाएं कि ये करूँगा तो जॉब और डिग्री हो ही जाती है। आप उसको अच्छी तरह से उस एजुकेशन को अपने अंदर करें, आप स्किल्ड बने। जब आप स्किल्ड बनेंगे तो राहें आपके लिए खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। और मेरी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द ऑडियंस जो कि इस रोड शो को में ऑनलाइन इन्वॉल्व हैं और इससे कुछ लेसन लेना चाहते हैं, हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ। वी आर अवेलेबल फॉर यू। इवन के हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, हम अपने बच्चों की स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। कि अभी जैसे कोविड के सिनेरियो थे तो हमने इस तरह के प्रोजेक्ट उन बच्चों से बनवाए कि वो जो कोविड में कोरोना वायरस में जो प्रोटीन इन्वॉल्व है उन पे वर्कआउट करें। तो हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स कोरोना वायरस पे हमने लॉन्च किए हैं और उन्होंने इंटरनेशनली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट भी किया है। तो हम मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को पॉलिश भी कर रहे हैं। तो सर सैयद यूनिवर्सिटी इस तरह से बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है कि मार्केट की क्या डिमांड है, उस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा है और विद इन अ प्रोग्राम कोर्सेज को इस तरह से पॉलिश किया जा रहा है कि वो मार्केट की डिमांड को परसू कर सके। स्टूडेंट्स की हम एथिक्स पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के हम प्रोफेशनली एटीट्यूड पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। इंटर्नशिप के लिए हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सर सैयद यूनिवर्सिटी, हमारा डिपार्टमेंट सर सैयद यूनिवर्सिटी के जो गाइडेंस सेंटर का प्लेटफॉर्म है उसके साथ बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए। हमारे यहाँ पे जितने भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सेक्टर्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व करके हम स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स को इन्हांस करते हुए ऑफर करते हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट का अपना रोल है कि वो किस तरह से GPA मेंटेन करता है, अपनी स्टडीज को किस तरह से कॉप अप करता है। तो मेरा मैसेज यही कि बेहतरीन पढ़िए, अब जॉब के लिए नहीं पढ़िए, पहले एजुकेट होने के लिए पढ़िए, फिर राहें आपके लिए खुद ही खुल के चली जाएगी। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the information and all the things you have done with me. Thank you so much, ma'am. Okay, now we have, thank you so much, Dr. Uzman, Dr. Mahmood, Dr. Sarmat, for being a part of this virtual information session. For further queries, we can visit our admission office where we are students, counselors, and faculty representative who can guide you better during the whole process. Also, you can contact us on the number, email running down the window. We are also available on Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn. You may join our social media platform for updated information or visit our website for detailed information, our academic program, fee structure, scholarship details, and all other related programs are in the information. Just reminded that the last day of submission is extended till 6th of August and test will be in the between 6th to 10th August, inshallah. Thank you for joining us. Stay safe. Good luck.